Hello students, in this video we will learn chapter number 10 of science, which is light, reflection and refraction. We all know that कि light is the form of energy which enables us to see the objects. When the light rays fall on an object, that the rays which have fallen on the object will be reflected back and it will reach to our eyes, and due to that reflected rays we will be able to see that object. In this chapter we will learn about mirror and lenses, where the types of mirrors are used, where types of lenses are used, its reflection, what will be the result for refraction of that mirror and lenses, how the images are formed on various types of mirrors and lenses. All these things we will be learning in this chapter. So first of all, some basic thing about light we will be learning, that why we are able to see all the objects clearly, because of transparent medium of air. एयर में जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसकी वजह से हम कोई भी चीज, एनी ऑब्जेक्ट वी कैन सी. द सन रेज विच falls on an object, that rays are reflected and that reaches to our eyes, and due to that we can see the object. The speed of the light, please remember this thing, speed of the light is three into 10⁸ meter per second. Speed of light is 3 into 10⁸ meter per second. Okay, now we will learn the laws of reflection, कि जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो उसके कुछ लॉज है. we will be studying that. First of all, you must be know कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है. तो रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. कोई भी मीडियम को, सपोज कि दिस इज अ मीडियम, कोई ऑब्जेक्ट है, वहां पे दिस इज द रे ऑफ लाइट. तो रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग एंड इट बाउंसेस बैक, ठीक है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. It is traveling in this direction and then it is traveling in the back, bouncing back in the opposite direction. So that phenomenon is called reflection. The phenomenon of bouncing back of light rays in the same medium on striking a smooth surface is called reflection of light. ठीक है. For laws of reflection, I am drawing a diagram from which you will be able to learn it easily.
which is directing towards the smooth surface and from that it is striking back. Okay, so the ray which is coming is called incident ray and the ray which is striking back is called reflected ray. A normal is formed between angle of incidence and angle of reflection. I have noted angle of incidence as theta I and angle of reflection is denoted as theta r. Okay, so there are two laws of reflection. First law is angle of incidence is always equal to angle of reflection. That is, theta I is always equal to theta r. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो फॉर्म होगा इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू थीटा आर. थीटा आई विल बी ऑलवेज इक्वल टू थीटा आर. एंड second law is the incident ray, that is the incident ray, normal and reflected ray. All the three things they lie in the same medium. ठीक है, they lie in same medium. ये तीनों के तीनों जो rays होंगे they will be lying in the same medium. Incident ray, reflected ray and the normal at point of incidence. All lie in same plane. They will be on the same plane. This is suppose ये एक plane है तो वो तीनों के तीनों it will be on the same plane. Okay, so this was laws of reflection. Again let us revise once कि laws of reflection में क्या है. First law ऐसा है कि angle of incident is equal will be always equal to angle of reflection, and the second law is incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence. They all three will be lying in the same plane. वो तीनों के तीनों एक ही plane में रहेंगे. Okay, now after reflection or refraction, the image will be formed. So there are two types of image formed. The first is a real image, and second is a virtual image. Real image means the image which is formed really, जो हम देख सकते हैं उसको clearly, ठीक है. And virtual image means जो हमें imagine करते हैं, ठीक है, कि हाँ ये image वहाँ पे form होगी ऐसे. तो real image will be formed. Suppose कि ये screen है और ये दो reflected rays जब combine होंगे तो जहां वो कहाँ combine होंगे तो on the screen. ये जो रियल इमेज होगी वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी, जबकि वर्चुअल इमेज जो है, ठीक है, तो सपोज कि एक सरफेस है, ठीक है, स्क्रीन है, तो वर्चुअल इमेज में जो पॉइंट ऑफ मीटिंग होगा दो रेज का, इट विल बी बिहाइंड द स्क्रीन के ऊपर वो फॉर्म नहीं होगी इमेज, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ टू इमेजेस आर फॉर्म, अ रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज. Real image is formed on the screen, whereas virtual image does not forms on the screen. Now let us move forward to mirror. So what is mirror? Mirror is a polished surface. एक ऐसा polished surface है जो almost every rays को वो reflect back करेगा, ठीक है. It will reflect almost all the rays. Example ग्लास बोल सकते हैं हम, ठीक है. तो
mirror are of two types, plane mirror and the spherical mirror. First of all, plane mirror. प्लेन मिरर किसे बोलेंगे कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो प्लेन है, ठीक है, इट इज प्लेन स्ट्रेट, ठीक है. इमेज इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर पे जो इमेजेस फॉर्म होगी उसकी प्रॉपर्टीज है. तो व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस दे कैन फॉर्म, क्या उसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. प्लेन मिरर में इमेज जो फॉर्म होती है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है. प्लेन मिरर कौन सी इमेज फॉर्म करता है, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट. वर्चुअल हमने पढ़ा कि इमेजिनरी वी कैन कॉल इट, ठीक है, एंड इरेक्ट दैट इज स्ट्रेट, ठीक है. देन सेकेंड प्रॉपर्टीज कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों की साइज सेम होगी. साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है. इमेज की साइज कितनी होगी, तो जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही इमेज की साइज होगी. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज डिस्टेंस बिटवीन distance between image and mirror is equal to distance between object and mirror. इमेज कितनी दूर फॉर्म होगी, तो जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा गया होगा उतना ही दूर इमेज फॉर्म होगी. यानी मिरर सपोज कि दिस इज ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा. ओके, सो इमेज मिरर का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ऑब्जेक्ट मिरर का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज मिरर का डिस्टेंस होगा. The last property is कि image formed is laterally inverted. Laterally inverted का मतलब होता है कि अगर लेफ्ट हाथ ऊपर किया है तो मिरर के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, राइट हैंड दिखाई देगा. अगर राइट हैंड ऊपर किया है तो we will be able to see left hand in the mirror. It is called laterally inverted. So these are the characteristics of an image formed on the plane mirror. Plane mirror में virtual image and erect image always form होगी. Size, image की size object की जितनी ही होगी, object mirror के बीच में जितना distance होगा उतना ही image mirror के बीच में distance होगा. And the last image जो form है it will be laterally inverted. That means left hand raise किया है तो you will be able to see right hand in the mirror and vice versa. Uses of plane mirror, तो कौन से uses है, तो they are commonly used as looking glass. लुकिंग ग्लास यानी जो हम मिरर्स घर में हमारे यूज करते हैं, ठीक है. देन इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स, ठीक है. पेरिस्कोप्स में यूज होते हैं विच इज यूज्ड इन सबमरीन्स के अंदर जो पेरिस्कोप्स यूज होते हैं उसके अंदर ये प्लेन मिरर होते हैं. देन यूज्ड एज ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स टू सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अदर साइड. अभी बहुत सारे मॉल्स के पार्किंग वगैरह में मिरर लगाया गया होता है, ठीक है, वो ताकि
दूसरी साइड से, अदर साइड से अगर कोई व्हीकल आता है तो वी कैन सी इट क्लियरली. तो दिस वाज ऑल फॉर प्लेन मिरर. सो नाउ second type of mirror, that is spherical mirror. In spherical mirror there are two types of mirror, concave mirror and convex mirror. So first of all, what is concave mirror? Concave mirror में क्या होगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा इट विल बी इनसाइड, अंदर का जो होगा मिरर पार्ट इट विल बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, यू कैन सी स्पून जो होती है, सपोज स्पून जो है इट इज लाइक दिस स्पून. ठीक है, तो यहाँ पे ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो दिस विल बी कॉन्केव मिरर. एंड कॉन्वेक्स में उल्टा होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ. यू कैन सी हियर, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी इनवर्ड एंड इन कॉन्वेक्स मिरर the reflecting surface will be outward. ठीक है, कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं. कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, whereas the convex mirror is called diverging mirror. Now let us learn some notations. I have noted here the points. So first of all we will see here पॉइंट सी, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट सी. तो पॉइंट सी जो है इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. पॉइंट सी जो है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी जैसे हमने बोला है कि ये स्फेरिकल मिरर होता है, तो ये स्फीयर पूरा कैसा है, मैंने हाफ ही ड्रॉ किया यहाँ पे, आई हैव टेकन अ पार्ट ऑफ इट, बट द मिरर सपोज स्फीयरिकल पूरा है. तो पॉइंट सी, तो पॉइंट सी क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयरिकल मिरर. It is you can see here it is marked by C. In concave mirror it is what we call it is in front of it. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है. जबकि कॉन्वेक्स मिरर में, इन कॉन्वेक्स मिरर पॉइंट सी जो है इट इज ऑन द बैक साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है और पॉइंट सी जो है इट इज ऑन बैक साइड, जबकि कॉन्केव मिरर में इट इज इन द फ्रंट साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. देन कम्स पॉइंट आर. हियर आई हैव रिटन पॉइंट आर, द लेटर आर. तो लेटर आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर. आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वी ऑल नो रेडियस, सर्कल का रेडियस क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर और सर्कल. तो उसी तरह यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या डेफिनेशन होगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट पी, दैट इज पोल. ओके, देन नेक्स्ट कम्स पोल. पोल क्या है, तो पोल of the spherical mirror is midpoint of its reflecting surface. पोल जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, यहाँ पे दोनों तरफ देख सकते हो आप, दोनों तरफ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट है P. इट इज डिनोटेड बाय पॉइंट P. देन कम्स प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट विल बी प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इमेजिनरी लाइन. यू कैन सी यहाँ पे दोनों mirrors में I have drawn with blue pen. The principal axis of a spherical mirror is the line joining the pole and the center of curvature. Principal axis क्या है, line joining C and P. line जो C और P को join करता हो उसे क्या बोलेंगे, principal axis. Then you can see here M1 and M2 I have written in both the mirrors, M1 and M2. तो it is called aperture. Aperture क्या है, it is the diameter of the reflecting surface. Diameter of reflecting surface, ये जो reflecting surface है उसका diameter M1 and M2. Then next comes F. F is the principal focus. F को बोलेंगे हम principal focus.
तो डेफिनेशन फॉर इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द light rays coming parallel to principal axis meet or appear to meet. यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों में, यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है, ठीक है। तो इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों ही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो दे अपीयर टू मीट, यानी वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं या तो दे विल अपीयर टू मीट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मीट कर रही है, ठीक है, इसलिए वी हैव रिटन हियर एफ। वेरेज यहाँ पे मीट नहीं कर रही है, बट हमने वी हैव एक्सटेंडेड, हमने क्या किया है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वी हैव एक्सटेंडेड इट टिल प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो उस यहाँ पे हमने पॉइंट एफ यहाँ पे डिनोट किया है, तो इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। देन फोकल लेंथ एफ, स्मॉल एफ आई हैव रिटन हियर, तो स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अगर यू विल गेट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, तो अगर आपको फोकल लेंथ नहीं दिया है तो फोकल लेंथ विल बी हाफ द रेडियस। दैट मीन्स कि अगर आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हाउ कैन यू फाइंड, तो इट इज फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो अगेन लेट अस रिवाइज इट वंस। C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, P है पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। F है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस यानी इंसिडेंट रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट द प्रिंसिपल एक्सिस और दे अपीयर टू मीट द प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। देन एफ क्या है, फोकल लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, और आर है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। Okay, so this was all the notations, important definitions for spherical mirror for both concave as well as convex mirror. Thank you.